Hello students, in the last class we studied about operations on sets, in which we discussed about union of sets and intersection of sets and their properties. Today we will discuss more operation on sets like difference of sets and complement of sets and their properties. These are the properties of complement. So let's take first point, difference of sets. Yes. Suppose we have two sets like A and B. We have two sets, then their difference represented by, like, suppose we are finding A minus B. Suppose we are finding A minus B. So A minus B is also a set which is given by a set of X type of element such that where X belongs to A but X does not belongs to B. In other words, we can say कि A minus B में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी एलिमेंट्स A के होंगे एक्सेप्ट एलिमेंट्स ऑफ B. A में से जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम हटा देंगे. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी हैव A 1 2 3 and B is 2 3 4. Okay, so A minus B will see set A only. ठीक है, set A हम देखें, इनके एलिमेंट्स लिखने हैं और इनमें वो एलिमेंट्स आप माइनस कर देंगे B के जो B के एलिमेंट्स होंगे. ठीक है, we have to just remove those elements which are in set A. तो आप set A में देखिए 2 and 3 अपने पास अगर है, so we will not take these elements. So A minus B will be set of 1. Only one element will get. Similarly, we can get B minus A also. Now we will see B set of B. यहाँ पे सारे elements B के आएंगे except elements of A. A के elements में जो भी होंगे उनको हम remove कर देंगे. So see कि A के elements यहाँ पे कौन कौन से 2 and 3. We have 2 and 3 which are in A. So we will remove these elements from B minus A. So we will get 4. Okay? Simple है, बहुत आसान है. A minus B आपका हमेशा क्या होगा? Set of all elements of A except B. और suppose we are finding B minus A means set of all elements of B except A. B में से A के elements हटा दो B minus A में, और A minus B में आप सेट ऑफ A में से B के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो आप हटा देंगे, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स जो होंगे जो सेट मिलेगा दैट विल बी A माइनस B. ओके, नेक्स्ट आपका जो है ऑपरेशन दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. सपोज वी हैव अ सेट A which is the subset of यूनिवर्सल सेट. ठीक है, अपने पास यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है which is represented by U and A is the subset of U. Then A complement is denoted by A dash in which all elements like X such that where X belongs to universal set and कह लीजिए but कह लीजिए X does not belongs to elements of A. ये काफी सिमिलर है डेफिनेशन कि हमें कह सकते हैं कि A कॉम्प्लीमेंट में सारे एलिमेंट्स होंगे यूनिवर्सल सेट के एक्सेप्ट A. सो वी कैन राइट U minus A. अभी हमने डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ा है, तो बिल्कुल उसी तरीके से कि A कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो आप A के एलिमेंट छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में होंगे जिसका वो सबसेट है वो सारे एलिमेंट्स इसमें आपके आ जाएंगे. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल, तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं. सपोज वी हैव यूनिवर्सल सेट लाइक 1 2 3 up to so on 10 and A is a subset of universal set in which we have 2 5 7. Okay, so A complement will be, अब यहाँ देख सकते हैं चाहे इसको अप्लाई करें चाहे इसको अप्लाई करें.
सो ए कॉम्प्लीमेंट विल बी, आपको यूनिवर्सल सेट लिखना है और यूनिवर्सल सेट में ये एलिमेंट्स आपको रिमूव कर देना है। सो द एलिमेंट्स विल बी 1 2 नहीं आएगा, then 3 then 4 5 नहीं बिकॉज ये ए में है, then 6 7 नहीं आएगा बिकॉज ए में है, 8 9 and 10। सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज में आगे बढ़ने से पहले मैं जितने भी ऑपरेशंस आपने बताए हैं इनको मैं वेन डायग्राम के थ्रू आपको शो कर देता हूँ कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट बाय यूजिंग वेन डायग्राम। सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट ए यूनियन बी। I told you A union B. A union B it means X, या इसकी definition आप देखिए, या फिर A union B it means the elements of A and B, a set in which all elements of A and B both are included but the repetition is not allowed. So by the Venn diagram, how will you represent? Suppose we have 3 subsets of universal set। ये आपका यूनिवर्सल सेट हुआ रेक्टेंगल, देन सर्कल्स जितने हैं ये आपके, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सपोज वी हैव 3 सेट्स, ओके। देन ए यूनियन बी इज गिवन बाय, या इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A and B, but repetition is not allowed। ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। इस शेडेड पार्ट जो है it shows the A union B, okay। Now intersection B, we studied about intersection। This is the one of the operation on sets। Suppose we talking about A intersection B, and I told you A intersection B it means common elements of A and B, a set of common elements of A and B। Venn diagram, this is U, and again we take 3 subsets, 3 circles, this is A, this is B and this is C। So A intersection B it means common element of AB। आपने A देख रहे हैं, यू आर सेइंग B, ये आपने दोनों देखा, इनमें जो कॉमन एलिमेंट है ये आपका A में भी है और B में भी है। तो ये जो आपका बनेगा दोनों का, दिस इज A इंटरसेक्शन B। C अपने जगह अभी बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको आप चाहें तो नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने ले लिया है कि अगर है तो कैसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ठीक है, ये हो गया। Today we discuss about difference of sets A minus B। ये क्या होगा आपका, चलिए मैं सिर्फ और सिर्फ 2 ही बना देता हूँ सर्कल्स, for A for B, this is universal set, okay। So A minus B means all the elements of A except B, B के elements छोड़ के, ये B के elements आ रहे हैं इसमें। So ये जो आपका मिला है सेट, दिस इज, ये आपका अब जो बनेगा A माइनस B। ये पूरा आपका A था जिसमें से मैंने B के एलिमेंट्स नहीं लिए, तो शेडेड पार्ट शोज A माइनस B, ठीक है। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट दिस इज सेट B, और इसमें से एक एलिमेंट्स मैंने हटा दिए, सो शेडेड पार्ट शोज B माइनस A, ठीक है। एक चीज और भी मैं आपको बता दूं, A माइनस B के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, कि हम इसे एक और भी वे से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि अगर हम बात करें A माइनस B की या B माइनस C, चलिए A माइनस B की बात करें, सो वी कैन से दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ complement of B, you know, complement अभी मैंने आपको बताया नहीं है, इसके बाद में बताता हूँ, ठीक है। इसको अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं, नहीं तो मैं यहीं पे एक्सप्रेस कर देता हूँ। चलिए ठीक मैं बताता हूँ, इसको यहाँ पे रोकते हैं। सबसे पहले आपको कॉम्प्लीमेंट बता देता हूँ। नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A represented by A dash, so you know
by the definition of complement. This is universal set, this is set A. Okay, so complement of A, it means all the elements of universal set except A. A को छोड़ के जितने भी elements या part आएगा आपका, that is called complement of A. ये आपका A को छोड़ के जो भी elements होंगे universal set के, वो किसमें आएंगे? A complement. So this is A complement. अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे A माइनस बी में एक और रिजल्ट आपको दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि A माइनस बी को और तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. ये जो शेडेड पार्ट है इसको और में क्या कह सकते हैं कि इफ वी डिस्कस अबाउट B कॉम्प्लीमेंट एंड क्या कह सकते हो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, आपको क्या मिलेगा? जस्ट थिंक अबाउट A मैंने बात की है पूरे की, और इंटरसेक्शन इट मींस कॉमन A में एंड B के कॉम्प्लीमेंट में, B को छोड़ के पूरा A में और B को छोड़ के बाकी जो पार्ट आता है उसमें जो कॉमन पार्ट होगा दैट इज A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. ये दोनों रिजल्ट सेम है, चाहे उसको A माइनस बी आप कहें या फिर A एंड B कॉम्प्लीमेंट का कॉमन पार्ट. दिस इज A and the common part of B complement है, this is B. तो B का complement क्या जाएगा आपका? ये आएगा, ठीक है. तो इस B को छोड़ के ये आपका शेडेड पार्ट B complement and this is the full जो है वो आपका A है. तो इसमें आप देख रहे हैं कॉमन पार्ट क्या हुआ दोनों में? A minus B. So we can we have one more result. In the place of A minus we can write A intersection B complement. This is a very important result. इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आगे यूज में आएगा. ओके, सो कॉम्प्लीमेंट हो गया आपका. अब आते हैं कुछ और भी वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग रिजल्ट शो कर सकते हैं. चलो इसमें हम देख लेते हैं. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट लॉ आपका ये जो है फर्स्ट शोज A union A complement is equal to universal set. A union A complement. Let's see by the Venn diagram we can understand. This is universal set and we have A. This is A. Okay, so we are having A union A complement. What is A? This is A. ठीक है, इसको मैंने अलग तरीके से नाम दे दिया. This is A. एंड कॉम्प्लीमेंट इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग ऐसे. ये समझाने का तरीका है. दिस इज द कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ A. इसको मैं यहां लिख सकता हूं A कॉम्प्लीमेंट. तो इन दोनों को अगर मैं यूनियन लूं सो व्हाट विल यू गेट? यस, फर्स्ट यूनिवर्सल सेट पूरा आ जाएगा. दिस इज A एंड दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ A और इनका यूनियन जो होता है वी हैव टू मर्ज बोथ द सेट्स. सो यू विल गेट यूनिवर्सल सेट. ओके, इफ वी टॉक अबाउट A intersection A complement, this is A and this is the complement of A. What are you observing? They have common shaded part? Yes or no? Yes. No. They don't have a common part. ये आपका A हो गया और A को छोड़ के जो बाकी है that is A complements, so they don't have a common element. So the result is what? Empty set. ठीक है? Next आपका इसी में प्रॉपर्टी में ही है डी मॉर्गन्स लॉ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. ये 2 रिजल्ट्स हैं. डी मॉर्गन्स लॉ के नाम से ये जाने जाते हैं. स्टेट एंड प्रूफ भी आता है कई बार. So what is De Morgan's law? If we find the complement of A union B, the complement of A union B, which is given by the intersection of their complements, A complement intersection B complement. और suppose we are finding the complement of A intersection B, तो ये complement अलग जाके लगता है तो साइन आपका उल्टा. आपको अगर इसको रिलेट करना तो आप देख सकते हैं कि we use union between A and B and then complement
देन द रिजल्ट विल बी, जब ये कॉम्प्लीमेंट अंदर पहुंचता है तो ये साइन आपका क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन में तब्दील हो जाता है। और सपोज याद कीजिए इंटरसेक्शन देन ए बी का जो अपन होल कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं और ये कॉम्प्लीमेंट अंदर पहुंचता है तो ये इंटरसेक्शन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यूनियन। लेट्स सी हाउ विल रिप्रेजेंट और प्रूव बाय वेन डायग्राम। आप देख सकते हैं फर्स्ट रिजल्ट मैं प्रूव करने जा रहा हूं, व्हिच इज ए union B complement is given by A complement intersection B complement। एक आपको मैं समझा देता हूँ and you will try second one, ठीक है। एक एक करके हम LHS लेके चलेंगे। सबसे पहले LHS पार्ट हम अगर हम देखें, so first I'll draw a diagram for A union B। ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बना के दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। So we have a two sets, this is universal set and then A and B। So A union B means A and B both the sets, ये शेडेड पार्ट मिल गया A union B। then मैं इसके बाद आगे चलो इम्प्लाइज लगा देता हूँ। then second result आपका जो मिल रहा है इसके बाद हम लोग क्या निकालना रहता है, A union B के बाद हमको उसका क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट। so if this is A union B, then its complement, you know, इनका complement किससे शो कर गया, अगर आपको पता चल गया है कि A B का यूनियन आपका ये पूरा है तो इसका complement हो गया A union B को छोड़ के, ये हुआ शेडेड पार्ट। ओके, दिस इज A यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपका फर्स्ट रिजल्ट है, LHS रिजल्ट। इक्वेशन फर्स्ट डाल सकते हैं समझने के लिए, ओके। एंड नाउ विल एक्सप्रेस RHS। RHS की हम निकालें, हमको ये देखना है। फर्स्ट विल रिप्रेजेंट A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट, देन आफ्टर देयर कॉमन शेडेड पार्ट। चलिए ये आपको मैंने बनाया यूनिवर्सल सेट A then B then A complement means except A we have to shaded the part except A। ओके, ये आपका सिर्फ छूटा है, बाकी पूरा का पूरा आपका शेड कर देगा। इट शोज इट स्टैंड्स फॉर A कॉम्प्लीमेंट, ओके। एंड फॉर B कॉम्प्लीमेंट, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज universal set। so A B complement means all elements of universal set except B। B सेट छोड़ के बाकी पूरा आपको क्या करना है, शेडेड करना है, ओके। सो ऑन B इज लेफ्ट, ये आपका हो गया, ओके। नाउ वी गॉट इट, A complement B complement, then we have to find the result, their intersection। so their intersection, अब आपको इसमें देखना है कि कॉमन शेडेड पार्ट क्या होगा, उसको आपको इसमें शेड करना है। दिस इज A, दिस इज B। सी इन दोनों में शेडेड पार्ट कौन सा है, आपको ये देखना पड़ेगा कि ऐसा कोई पार्ट जो अगर इसमें छूट रहा है या उसमें छूट रहा है तो वो पार्ट हम नहीं लेंगे, बाकी सारे पार्ट लेंगे। इंटरसेक्शन मींस ये जो भी शेडेड पार्ट है दोनों पर मिला के, अगर अपने पास ट्रेसिंग पेपर होता है दोनों को मिला के ऊपर रख लेते तो भी ये चीज क्लियर हो जाती है, टेस्ट हो जाता है प्रैक्टिकल। सो सी वी विल नॉट टेक दिस पार्ट, राइट, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। वी कांट टेक, इट शुड बी द कॉमन शेडेड पार्ट। यहाँ पे शेडेड है बट यहाँ पे नहीं, सो वी कांट टेक दिस पार्ट। मतलब ओवरऑल हम ये जो वाला पार्ट है ये नहीं ले सकते क्योंकि ये एक जगह है, एक जगह शेडेड नहीं, सो वी कांट टेक, वी हैव टू टेक
that shaded part which are common in both the diagrams. So the result will be so this is the result of A complement intersection B complement. And let's compare diagram first and second. इनको आप compare करें तो both the results are same. दोनों के diagram same है. It means LHS equal to RHS. ये proof था by using Venn diagram. ठीक है, इससे आपको इसका वो भी समझ में आया किस तरीके से हम लोग Venn diagram बनाएंगे. Okay. So next जो आपका इसमें था दो पार्ट थे इसमें De Morgan's law में. Second one you will have to try. Okay. Next इसी में आपकी जो कॉम्प्लीमेंट में जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन. डबल कॉम्प्लीमेंटेशन इट मींस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज ए. ये ए आपको वही मिल जाता है. ठीक है, इसको आप देख सकते हैं डायग्राम से. This is U, this is A. So first A complement, this is A complement. All elements of universal set except A. So again, suppose yeah, just find again its complement. A complement आपको शेडेड पार्ट मिला है और शेडेड पार्ट जो भी मिला है complement उसका फिर से complement निकालें तो इस शेडेड पार्ट को छोड़ के जो पार्ट आएगा यूनिवर्सल सेट का ये आपको वापस क्या मिल जाएगा A. मतलब अगर आपने बात की A complement is all elements of universal set except A. ठीक है, सारा का सारा except A. और अगेन हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेने तो बात वही आती है कि U में से हम लोग को कौन सा पार्ट हटाना है. ठीक है, देन अगेन यू विल गेट A. दिस इज A कॉम्प्लीमेंट A जो कि आपको क्या मिल गया वापस शेडेड पार्ट A शेडेड पार्ट मिल गया. ओके, वी हैव टू मोर रिजल्ट्स. आपको पता होना चाहिए laws of empty sets है and laws of universal set. Empty set का complement, empty set is the subset of every set. So you know अगर हम universal set की बात करें तो इसमें phi का होना मतलब ना होना मतलब वो exist भी कर रहा है और उसमें elements नहीं है तो वो कहीं भी है बट इसके so phi का कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे वापस यूनिवर्सल सेट. मतलब अगर इसको हम डेफिनेशन के तौर पर लिखें सो phi का कॉम्प्लीमेंट इट मींस यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो phi के एलिमेंट. तो यूनिवर्सल में से अगर phi जा रहा है मतलब phi में कोई भी एलिमेंट्स नहीं इट मींस यू गेट यूनिवर्सल सेट. एंड इफ वी फाइंड यूनिवर्सल सेट complement of universal set. So it means definition of complement of set कि universal set में से हमें अब क्या किसके लिए निकालना complement universल सेट के लिए. तो u minus u में से u के एलिमेंट सारे हटा दो then we will get phi. Okay, so बिल्कुल आपकी रिवर्स वाली प्रोसेस यहाँ पे कि complement of phi is universal set and complement of universal set is phi. So ये आपके ऑपरेशंस थे और मैंने आपका इसमें वेन डायग्राम का यूज भी बताया कैसे कैसे आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे. तो इससे रिलेटेड आपको सम्स ट्राई करना है. बहुत सिंपल से ऑपरेशंस थे और सिर्फ एक टॉपिक बचा है उसके लिए क्लास काफ़ी रहेगी. तो ये आज आपके लिए काफ़ी था. इससे रिलेटेड सम्स आपको ट्राई करना है. ओके, सो ओके, बाय स्टूडेंट्स.